Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the fourth class on chapter 2 of Microeconomics, Central Problems of an Economy. If you have not seen the previous lectures, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous lecture we studied about PPC. So PPC is Production Possibility Curve. It is a curve that shows different possible combinations of two goods which can be produced with the available resources. And in today's class, we will study about central problems. Central problems using the concept of PPC means कि हम जो भी हमारी central problems हैं, what to produce, how to produce, whom to produce, and जो दो additional problems हैं जो कि specifically सिर्फ underdeveloped economies से relate करती हैं, उनको हम लोग PPC के concept से study करेंगे. So आज की क्लास में हम लोग PPC का relation जो है वो what to produce से study करेंगे in detail. So the problem of what to produce is related to the problem of choice. What quantity of good X and Y is to be produced? Production of more of good X must lead to less production of good Y because resources are assumed to be fully and efficiently utilized and technology remains constant. Means कि जो हमारा problem है what to produce का वो किससे related है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स बनाए एंड कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड वाई बनाए. अगर हम गुड एक्स को ज्यादा बनाएंगे तो इसका मतलब होता है कि हमें गुड वाई को कम प्रोड्यूस करना है, और अगर हम गुड वाई को ज्यादा बनाएंगे तो हम गुड एक्स को कम प्रोड्यूस करेंगे. सो एक गुड को बनाने के लिए हमें दूसरे को सैक्रिफाइस करना होगा. एज यू कैन ऑल सी द पीपीसी कर्व. यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा होगा सी, E, R and S. लेट्स से कि पॉइंट C जो है वहां पे 50 है, E पे 30 है, R पे 20 है एंड S पे 40 है. एंड जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनता है. सो अगर हम पहले हमारा प्रोडक्शन जो था गुड बाई का वो 50 था तो गुड एक्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा था? 20 हो रहा था. बट अगर अब हमें ज्यादा गुड एक्स बनाना है, 40 बनाना है, तो हमारे जो गुड बाई का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होके 30 हो जाएगा. सो अगर हमें गुड वाई को ज्यादा बनाना है तो हमें गुड एक्स को कम बनाना होगा, और अगर गुड एक्स को ज्यादा बनाना है तो गुड वाई को कम बनाना पड़ेगा. So here is some related information which the PPC curves provide when we study the problem of what to produce. So here we can see a graph where on the y-axis we have taken guns and on the x-axis we have taken butter. Here we can see points A, B, C, D, E and F. So we can see point A, B, C, D, E and F. So points A, B, C, D on PPC and point E inside the PPC curve are attainable combinations. तो यहाँ पे जो point A है, B है, C है और D है, ये on PPC है, और जो point E है वो inside the PPC है. इनको हम क्या कहते हैं? attainable combinations कहते हैं. attainable combinations means कि जो हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. while point F shows unattainable combinations of output. तो point F है, ये बताता है कि ये क्या है? एक unattainable combination है. unattainable combination means कि वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हम बना नहीं सकते विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. सो द पॉइंट on PPC A, B, C, D are attainable combinations with fuller and efficient utilization of resources. जो point A, B, C, D हैं on PPC ये attainable हैं, और ये क्या शो करते हैं कि हमारे जो resources हैं वो fully and efficiently utilize हो रहे हैं.
बट द पॉइंट ई जो है, जो इनसाइड द पीपीसी है, ये अटेनेबल तो है, बट यहाँ पे ये हमें ये नहीं शो कर रहा कि यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं. सो सेकेंड इज देयर आर टू लेवल्स ऑफ आउटपुट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट. सो हमारे पास दो लेवल ऑफ आउटपुट होते हैं, एक एक्चुअल होता है और एक पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल होता है कि जो हम मैक्सिमम आउटपुट अटेन कर सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जिससे कि हमारा क्या हो, फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. जबकि हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है कि जो हमें एक्चुअली हमने अटेन किया हो आउटपुट. So potential level of output refers to the maximum output attainable with the available resources. We can say fuller and efficient utilization of resources. Actual level of output is actual output attained. यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे होंगे R, S, F और G. इस ग्राफ में जहां पे हमने y एक्सिस पे एप्पल्स लिए हैं और x एक्सिस पे बीट लिया है, यहाँ लिखा है कि एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट. जो पॉइंट्स इनसाइड द पीपीसी हैं, पॉइंट F और G, ये हमें शो कर रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल है वो पोटेंशियल से कम है. मतलब कि जो हमने प्रोड्यूस किया है वो कम है जितना हम पोटेंशियली मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते थे. और जो पॉइंट R और S है, इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल आउटपुट जो है वो इक्वल है टू द एक्चुअल आउटपुट. Thus point R and S represents potential output equals to actual output, and point F and G represents actual output is less than the potential output, and here is always actual level of output less than or equal to potential level of output. इससे बाहर unattainable तो नहीं हो सकता, तो या तो ऑन द पीपीसी या फिर इनसाइड द पीपीसी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे अटेनेबल होते हैं. सो थर्ड इज PPC helps identify the opportunity cost of shifting resources from use 1 to use 2. So the concept of opportunity cost, ये further chapter में आपको मैं in detail बताऊंगी, but अभी आप basic समझ लीजिए. Opportunity cost एक ऐसी cost है जो कि हम लोग bear करते हैं जब हम resources को एक use से दूसरे use में shift करते हैं. जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है जहाँ पे हमने y एक्सिस पे एप्पल्स लिए हैं और x एक्सिस पे व्हीट लिया है. तो अगर जब हमने प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स को K to K1 किया, मीन्स हमने एप्पल्स का लॉस किया प्रोडक्शन, मतलब कि हमने लॉस ऑफ आउटपुट किया एप्पल्स का, तो हमें गेन हुआ आउटपुट में ऑफ व्हीट. तो जो हमारा लॉस है वो किससे डिनोट हो रहा है, AB से, और जो हमारा गेन है वो हमें डिनोट हो रहा है PC से. सो then the gain of output BC and the loss of output AB. The loss of output of apples denoted as AB is the opportunity cost of gain of output of B denoted as BC. Means कि जो हमें लॉस हुआ है आउटपुट का एप्पल्स में, वो क्या है, वो कॉस्ट हमने किसके लिए दी है कि हमें गेन हो सके प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में, हमें गेन हो सके जब हम व्हीट प्रोड्यूस करें. So it is all for today. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. In tomorrow's class, we will continue the central problems using the concept of PPC. Please like and subscribe. Thank you.